I hope you all are fine. You've enjoyed your vacation. I hope you all are safe. Okay. Okay. Now I'll start with a question. Right? Have you seen an elephant? Maybe you have not seen an elephant in real life, but you all must have seen it in your books. If not, then see, an elephant looks like this. Elephant has 4 legs, tail, big ears like fan, a trunk, right? Now, have you seen a blind man? A blind man looks like this. A person can be different. Obviously, the looks can be different. But what do you mean by blind person? Blind. So, a blind person is one who cannot see. See here in this picture. See, whenever we make picture of a blind person, we put goggles, we put shades, black shades to that person. Why? Because that person cannot see. Okay. Now, so the story which we are going to read today, is about blind men, not man, blind men, more than one, and the elephant. Okay? So the name of our chapter is The Blind Man and the Elephant. Now listen carefully. Once upon a time, a wise man came to a village with his elephant. The elephant's name was Gajju. It was very large and looked like a mountain. So a wise man came. Okay, so what do you mean by wise? Wise means समझदार, जो जिसके पास अक्ल हो, जो समझदारी से काम ले. ओके, तो एक बार एक वाइज मैन विलेज आया एक हाथी के साथ. एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट? इट वाज गज्जू. And the elephant was very large and it looked like a mountain. Mountain means पहाड़. वो एलिफेंट किसकी तरह दिख रहा था? ऐसा लग रहा था पहाड़ सा है, क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा था. Many people came to see and touch him. Gajju was a tame animal, so no one was afraid of him. वैसे आप अगर एलिफेंट को देखो तो आप डरोगे, बिकॉज एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है. बट ये जो गज्जू था, ये टेम एनिमल था. ही वॉज दिस एलिफेंट वॉज वेरी जेंटल. तो कोई भी उससे डर नहीं रहा था और सब उसको देखने के लिए, टच करने के लिए आए. 4 friends also came to see the elephant, as none of them had seen an elephant before. They were very eager to see one. ऐसे 4 friends भी आए एंड इसको, इस एनिमल को, एलिफेंट को देखने के लिए, क्योंकि उनमें से, उन चारों में से किसी ने भी एलिफेंट को पहले नहीं देखा था. They were very eager, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको बहुत जल्दी थी, एक्साइटेड थे कि हमें बस एलिफेंट को देखना है. However, something was very different about the 4 friends. All of them were blind. Oh, these friends were blind. And I told you, what do you mean by blind? Blind mean जो वो blind होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, हम उनको blind बोलते हैं. तो वो 4 friends एलिफेंट को देखने आए थे, बट वो देख नहीं सकते थे. तो जो देख नहीं सकते हैं वो कैसे फील करते हैं, कैसे किसी चीज़ की पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड में, उसको अपने हैंड से टच करके. इसलिए द फर्स्ट वन टच्ड द एलिफेंट्स लेग एंड सेड द एलिफेंट इज लाइक अ ट्री. क्योंकि ट्री की ब्रांच जो होती है, ट्रंक बहुत मोटी सी होती है, उसी तरह एलिफेंट का लेग भी मोटा सा होता है. तो जब फर्स्ट मैन ने उसके एलिफेंट के लेग को टच किया तो बोला एलिफेंट तो ट्री की तरह है. ओके. Then the second person touched the tail of the elephant
and said, "No, no, this elephant is like a rope." सेकेंड पर्सन ने जब टेल एलिफेंट की टच करी तो उसने बोला, नहीं, एलिफेंट ट्री की तरह नहीं है, एलिफेंट किसकी तरह है? रोप की तरह. व्हाट डू यू मीन बाय रोप? रोप मीन्स रस्सी. उसने बोला एलिफेंट तो रस्सी की तरह है. फिर थर्ड फ्रेंड आया, उसने टच किया ट्रंक ऑफ द एलिफेंट. ट्रंक मीन्स उसकी सूंड, हाथी की सूंड को टच किया उसने. एंड ओपाइंड, ओपाइंड मीन्स अपना ओपिनियन दिया. यू बोथ आर रॉन्ग. थर्ड मैन ने बोला कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों को बोला कि तुम दोनों गलत हो, एलिफेंट तो स्नेक की तरह है, क्योंकि उसको कैसा, उसने ट्रंक टच की थी इसलिए उसको वो स्नेक की तरह लगा. नाउ द फोर्थ फ्रेंड केम फॉरवर्ड. अब फोर्थ वाला फ्रेंड आगे आया कि ये तीनों अलग अलग बोल रहे, मैं भी तो देखूं. Then the fourth friend came forward and found the elephant's ear. उसके हाथ में क्या आया? एलिफेंट का ear. And he said, all of you are wrong. The elephant is very much like a fan. उसने कहा तुम तीनों के तीनों गलत हो, एलिफेंट तो फैन की तरह है. Thus they all began to argue among themselves and started fighting. They all had their own views of what the elephant was like. Each of them thought that he was right. चारों के अलग अलग व्यूज, चारों लड़ना शुरू हो गए, बहस करना शुरू हो गए. आर्ग्यू मीन्स क्वारल, दैट इज लड़ाई. तो लड़ने लगे आपस में, बहस करने लगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. सब अपने आप को ही सही बोलते हैं ना अगर कोई लड़ाई होती है. तो उसी तरह ये चारों भी कर रहे थे, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो. पर सबके अपने अपने अलग व्यू थे कि एलिफेंट, फर्स्ट मैन बोल रहा था एलिफेंट ट्री की तरह है, सेकंड बोल रहा था रोप की तरह है, थर्ड बोल रहा था स्नेक की तरह है, फोर्थ बोल रहा था फैन की तरह. चारों लड़ने लगे. सब ये सोच रहे थे कि हम ठीक है, हम ही सही हैं, बाकी तीनों गलत हैं. On seeing the friends fighting, the wise man came forward and told them, "Dear friends, each one of you is saying the right thing." वाइज मैन जो था, समझदार इंसान जिसका एलिफेंट था, जो एलिफेंट को लेके आया था, वो आगे आया. जब उसने देखा ये लोग लड़ रहे हैं ये फ्रेंड्स, तो वो आगे आया. उसने बोला, डियर फ्रेंड्स, तुम सब सही हो, तुम चारों ठीक हो, तुम चारों ही सही बोल रहे हो, कोई भी गलत नहीं है. पर अगर हम आपके व्यूज़ को, बट व्हेन योर व्यूज़ आर पुट इनटू कॉन्टेस्ट, एक आर्गुमेंट की तरह देखें, तो किसी का भी आर्गुमेंट सही नहीं है, चारों गलत प्रूफ हो गए. देन नन ऑफ यू इज राइट. वाई? चारों क्यों गलत थे? बिकॉज ईच वन ऑफ यू इज डिस्क्राइबिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द बिग एनिमल. तब उसने बोला कि एलिफेंट बहुत बिग एनिमल है, आप लोग ने एनिमल का एक पार्ट टच किया और उसको डिस्क्राइब कर दिया, और आप चारों ने अलग अलग पार्ट टच किया, इसलिए आप चारों सही भी हो. लेकिन अगर हम इसको आर्गुमेंट की तरह देखें तो ऐसा एलिफेंट नहीं है, तो आप चारों गलत भी हो गए. तो फ्रेंड ने पूछा, सारे फ्रेंड्स ने, चारों ने पूछा, हाउ इज दैट? आस्क्ड द फ्रेंड्स. द वाइज मैन एक्सप्लेन्ड, द एलिफेंट्स लेग लुक्स एंड फील्स लाइक अ पिलर. जो एलिफेंट के लेग हैं वो ऐसा लगता है कि वो पिलर की तरह है. टेल ऐसी लगती है कि वो रोप की तरह है, रस्सी की तरह. पिलर मीन्स खंबा. ओके, ध्यान से. द एलिफेंट लेग किसकी तरह लगते हैं? खंबे की तरह. टेल इज लाइक अ रोप, रस्सी की तरह. द ट्रंक डज फील लाइक अ स्नेक. ट्रंक जो है उसकी हाथी की सूंड है, उसको हम बोलते हैं ट्रंक. तो ट्रंक स्नेक की तरह ही लगती है. ईयर्स आर लाइक फैंस. ईयर फैन की तरह ही लगते हैं. यू ऑल शुड हैव पूल्ड योर इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग ओवर हु इज राइट. आप चारों को अपनी इंफॉर्मेशन को पूल करना चाहिए था, मिक्स करना चाहिए था, साथ में इकट्ठा करके फिर आपको सोचना चाहिए था, लड़ाई करने की जगह. Four friends realized their mistake
and did as advised by the wise man. जैसा wise man ने advice की, फिर 4 friends ने वैसे ही किया. उन्होंने अपने चारों की इंफॉर्मेशन को पूल किया, इकट्ठा किया, एक साथ मिला के फिर एक पिक्चर बनाई एलिफेंट की. Thus, they were finally able to get a clear picture of the animal in their mind. फिर उनके माइंड में एनिमल की, इस एलिफेंट की एक क्लियर पिक्चर बनी. They understood that one should examine a matter from all sides and only then give his or her opinion. This is the moral of the story. कि उनको भी ये समझ आ गया कि किसी को भी कोई भी मैटर होता है उसको हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करना चाहिए, तभी अपना ओपिनियन देना चाहिए किसी को भी. जैसे आप लोगों की अगर लड़ाई हुई, किसी 3 बच्चों की लड़ाई हुई, पहला बोलेगा इसने मैम मेरी पेंसिल ली, दूसरा बोलेगा नहीं मैम ये तो मेरी पेंसिल है, तीसरा बोलेगा नहीं मैम ये मेरी है. तो आपस में आप सब अपने अपने आप को ठीक बोलोगे सब, पर टीचर को क्या करना है, सिर्फ एक की बात सुन के नहीं रिएक्ट करना है ना. मुझे ये नहीं कि मुझे फर्स्ट बच्चे ने बोला कि मैम दिस इज़ माई पेंसिल तो मैं वो पेंसिल उठा के दे दूँ फर्स्ट को. नो, मुझे दूसरे की भी, जिसके हाथ में वो पेंसिल है उसका भी सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या ओपिनियन है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात भी सुननी पड़ेगी. तभी तो मैम डिसाइड करेंगी ना कि किसकी पेंसिल है. तो कोई भी लड़ाई हो या कुछ भी हो सिचुएशन, नॉट ओनली इट इज़ नॉट ओनली यू हैव टू डू इट इन योर फाइट्स, फिर एनीथिंग इन योर लाइफ, whatever problem you have or whatever situation you are dealing with, आपको हर एंगल से, हर तरीके से उस मैटर को एग्जामिन करना है, तभी अपना ओपिनियन देना है. उससे पहले कुछ नहीं बोलना. पहले उसको, अभी अगर इन सारे चारों 4 मैन ने क्या किया होता, सारे पार्ट्स एलिफेंट के टच किए होते खुद से, तब बताया होता कि एलिफेंट कैसा दिखता है, तो गलत नहीं होता ना. उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक पार्ट टच किया और अपना डिसीजन दे दिया कि हाँ एलिफेंट इसकी तरह है. किसी ने फर्स्ट मैन ने बोला ट्री की तरह, सेकंड ने बोला रोप की तरह, सो अलग अलग. बट अगर इन चारों ने सारे पार्ट्स एलिफेंट के टच किए होते अपने हाथ से, तो वो ऐसा नहीं बोलते, है ना. तो उन्होंने अपना ओपिनियन जल्दी में दे दिया और सारी पार्ट्स को टच नहीं किया, हर तरीके से एलिफेंट को एग्जामिन नहीं किया. ओके, therefore we should not quarrel with others who have different opinions. ये तो आपस में लड़ने भी लगे थे क्योंकि चारों के ओपिनियन अलग थे. All 4 friends gave different opinions और आपस में they started fighting. So आपको कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि इसका ओपिनियन अलग है, ये अलग बोल रहा है, मैं अलग बोल रहा हूँ, मैं ही ठीक हूँ, ऐसे करके लड़ते नहीं हैं. बिकॉज एवरीबडी लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. हर एक का किसी भी चीज़ को देखने का तरीका अलग होता है. अब वही एलिफेंट के कान उसने पकड़े तो उसने बोल दिया वो फैन की तरह है, एक ने पैर पकड़े तो उसने बोला वो ट्रंक की तरह है, एक ने पूंछ पकड़ी, टेल पकड़ी तो बोला वो रोप की तरह है. सबके ओपिनियन अलग हो गए ना. पकड़ा सबने एलिफेंट का ही पार्ट था, ठीक है. तो इसीलिए हर एक का ओपिनियन अलग होता है. इसीलिए कभी भी किसी का ओपिनियन अलग हो तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है. वो अपने तरीके से सोच रहा है, उसके सोचने का ढंग अलग है, आप दूसरी तरीके से सोचते हो, वो दूसरी तरीके से सोचता है. वो अलग इंडिविजुअल है, आप अलग इंडिविजुअल हो. हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता. आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, सब वैसे ही सोचें. दैट इज़ रॉन्ग, राइट. वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट अदर पीपल्स ओपिनियंस. हमें दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी हमारे दूसरों से रिलेशंस अच्छे होते हैं. दिस विल गो ऑन अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग आवर रिलेशंस विद देम. अगर सिर्फ हम अपनी ही लगाएं कि हम ही ठीक है बाकी सब रॉन्ग है, तो आपके धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाएंगे कि ये सिर्फ अपने आप को ठीक समझता है, ये सोचता है कि बाकी सब गलत है. अगर आप यही अपने ओपिनियन को दो और दूसरे के ओपिनियन को भी सुनो और ये बोलो कि ठीक है मेरा ओपिनियन ये है बट आपका ओपिनियन ये है विच इज़ राइट,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी सही है, मेरा भी सही है, हर एक का नज़रिया अलग होता है। आपस में लड़ाई नहीं करनी, उसके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी है, तो ही आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना फ्रेंडशिप में, एक दूसरे की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बोलते रहना मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, इट इज़ रॉन्ग। ओके, I hope the story is clear to you all. It's a very interesting story. Yeah? You have learned something new from this story, right?